علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے باسل، جو کہ تحریر ہے ہما وقاص کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 16۔ بکھرے بال آدھی آستین کی ٹی شرٹ پہنے وہ ٹٹرتی سردی میں اس کے سامنے بیٹھا پوری طرح محو تلاوت کر رہا تھا۔ آنکھیں مودے ہوئی تھیں، گھنی پلکیں خوبصورت چہرے پر بند تھیں، حرف اتار چڑھاؤ کے ساتھ اس کے منہ سے نکل کر فضا میں گھل رہا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ کس حرف کو کب جو دہن، حلق، زبان اور ناک سے ادا کرنا ہے۔ زبیریہ کو اپنے جسم کے تمام رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ ایک سحر تھا، طلسم تھا۔ اس کی آواز کانوں سے گزر کر اس کے دل پر اثر کر رہی تھی۔ وقت کے رکنے جیسا احساس تھا، ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ تھی۔ ایسا احساس تھا جیسے کوئی اعصاب پر ٹھنڈی فوار برسا رہا ہو۔ یہ وہی دوران ملک تھا جس نے اسے کمرے میں قرآن کی تلاوت سننے پر اتنی باتیں سنائی تھیں، اور آج وہ خود اتنی خوبصورتی سے تلاوت کرتا ہوا اسے حیرت کے سمندر میں دھکیلے ہوئے تھا۔ وہ اسی طرح سکتے کے عالم میں بیٹھی تھی جب تیسری آیت کی تلاوت کے بعد دوران نے ایک دم سے خاموشی اختیار کی اور آنکھیں پوری کھول دیں۔ وہ جیسے کسی سحر سے باہر آیا تھا، جیسے پھر سے سکون یا سختی میں بدل گیا ہو۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتا آؤٹ ڈور کیا کمرے سے بھی باہر نکل گیا، جبکہ وہ منجمد وہیں بیٹھی تھی۔ حیرت سے کھلی آنکھوں میں ہلکی سی لغزش تھی، اور پھر وجود میں جیسے ایک راحت سرایت کرنے لگی۔ اتنی شدید ٹھنڈ میں بھی اس کا جسم گرم تھا۔ لب مسکرا دیے، مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ یکدم سے کھلے لب اور مسکراہٹ دل فریب ہنسی میں بدل گئی۔ ترتیب سے جڑے دانت لبوں کی اوٹ سے جھلکنے لگے، گال گلال ہوئے، آنکھوں میں چمک تھی۔ پتلیوں میں کچھ لمحے پہلے بیٹھے دوران کا عکس تھا، اور محبت کی ایک نئے انداز میں چمک۔ ضبط جتنا بھی ہو، جتنے بھی پہرے لگا لے، دل میں دبی محبت کہاں ختم ہوتی ہے؟ جتنا بھی خود کو روک لو، تھام لو، سنبھال لو، کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک پل یا محبوب کی کوئی ایک ادا سارے ضبط پر پانی پھیر دیتی ہے۔ اس کے دل میں بھی جو دوران کے لیے محبت کا سمندر موجود تھا، جسے ضبط کے جادو سے اس نے ایک کوزے میں بند کر رکھا تھا، آج اس کوزے کو پاش پاش کیے پورے وجود میں ٹھاٹے مارنے لگا تھا۔ دوران کی بند آنکھیں بمشکل کھلی، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ سر کے نیچے کسی نرم تکیے اور گردن تک اڑے گرم کمبل کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ نیم باں آنکھیں چند سیکنڈ کے توقف کے بعد اب پوری اوپر اٹھ چکی تھیں۔ آنکھوں کے پور کھلتے ہی سر میں ایک شدید درد کی لہر اٹھی تھی، جس کی تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے اس کی پیشانی پر ہلکے سے شکن ابھرے۔ شکن پڑتے ہی احساس ہوا کہ اس کے سر پر پٹی بندھی ہے۔ فوراً ہاتھ لگا کر تصدیق کی۔ وہ کسی کمرے میں موجود تھا، اور یہ شاید پلنگ تھا جس پر وہ اس وقت لیٹا ہوا تھا۔ حواس بحال ہونے کے ساتھ ساتھ اسے پچھلے گزرے پل یاد آنے لگے۔ ملک ہاؤس کے اس کمرے میں موجود بہت سے ذہنوں کی شاطر چال اگلے ہی لمحے کھل کر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ دستگیر بیگم کے نکاح کے حکم دینے کے بعد وہ سبرینا کو سمجھانے اور یہ بتانے کی غرض سے اس کے کمرے میں جا رہا تھا کہ وہ سب کے سامنے آ کر سچ کو بتائے کہ ان دونوں کے بیچ کچھ نہیں ہوا، اور عدنان پھپھا نے جو کچھ دیکھا اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ سب کو سچ بتا دینا چاہتا تھا، کیونکہ وہ کسی صورت سبرینا سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جیسے ہی سبرینا کے کمرے کے پاس پہنچا، کمرے سے ابھرتی سرگوشی نما آوازوں نے اس سے ایک اور رشتہ چھین لیا۔ سونیا، روبی اور سبرینا کمرے میں موجود کہکو سمیت سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ سونیا اور روبی سبرینا کو اچھی اداکاری کرنے پر داد دے رہی تھیں۔ انہوں نے یہ سب ایک مکمل منصوبے کے تحت سر انجام دیا تھا، جس میں معصوم صرف ایک وہ اور ایک دوسرے عدنان پھپھا تھے۔ سب جانتے تھے وہ بہت حساس ہیں ان سارے معاملوں میں، اور وہ اس حرکت کو معمولی نہیں لیں گے۔ اسی لیے سبرینا کے اوپر جانے کے کچھ دیر بعد ہی طلعت منصوبے کے عین مطابق جان بوجھ کر عدنان کو اوپر لے آئی تھی کہ آپ دوران کے کمرے والا واش روم نہانے کے لیے استعمال کر لیں۔ ان سب نے نہ صرف عدنان کے احساسات کو مہرا بنایا تھا، بلکہ دوران کے جذبات کے ساتھ بھی کھیلنے کی خوب کوشش کی تھی۔ سب یہ بات بخوبی جانتے تھے کہ دوران سبرینا کے معاملے میں نرمی رکھتا ہے، اور یوں خاندان بھر میں وہ سبرینا پر الزام دیکھ کر چپ چاپ نکاح کر لے گا۔ کمرے سے کہکے گونجے اور سب اسے سمجھ آ گیا تھا۔ سبرینا خوشی سے سرشار نکاح کے لیے سنگھار کر رہی تھی۔ وہ الٹے قدموں وہاں سے نکلا، ہر شے سے اعتبار اٹھ گیا تھا۔ سبرینا کی محبت اور چاہت چاہے اسے بچکانہ لگتی تھی، لیکن وہ اس کے مخلص ہونے پر کبھی شک نہیں کرتا تھا۔ یاور کے بعد اس گھر میں صرف وہ تھی جو اسے اپنائیت کا احساس دلاتی تھی۔ سبرینا کی طرف سے اتنا بڑا دھوکہ اسے اندر سے ہلا کر رکھ گیا تھا۔ وہ غم اور غصے کی حالت میں سیدھا لائز ایریا پہنچ گیا تھا۔ زندگی بے معنی، سب جھوٹا تھا، مکاری، فراڈ لگنے لگا تھا۔
کل تک یہ لگتا تھا کوئی ایک ایسا رشتہ ہے جو اس کے ساتھ دل سے مخلص ہے، لیکن صبرینا نے سب کے ساتھ مل کر یہ گھٹیا چال چلی اور اس کے اندر رشتوں کو لے کر جو کچھ احساسات باقی تھے سب درم برم ہو گیا۔ انل کراچی میں نہیں تھا، وہ شاید حیدرآباد اپنے ماموں کی طرف گیا تھا۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر وہ عمارت کی چھت پر آ گیا اور اس دن دل کو چھلنی کرتے جذبات کی رو میں بہہ کر وہ 21 سالہ دوران چھت سے کود جاتا اگر وہ لڑکی بروقت وہاں پہنچ کر اسے بچا نہ لیتی۔ وہاں سے نکل کر جب تک وہ ملک ہاؤس واپس پہنچا، وہاں شادی کے سلسلے میں لائے گئے ملازموں کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ سب پائکا کی مہندی کے لیے شادی ہال جا چکے تھے۔ نہ جانے نکاح کے وقت اسے گھر میں نہ پا کر کیا قیامت برپا ہوئی ہوگی، لیکن اسے اب ان سب باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا، چند کپڑے بیگ میں بھر کر گھر سے باہر نکل گیا۔ شاید اس وقت انل ہوتا تو اسے سنبھال لیتا، لیکن اب ہر رشتے سے، ہر ناطے سے اعتبار جو ختم ہو گیا تھا۔ کراچی سے وہ آخری اسٹیشن تک کی ٹکٹ لے کر بیٹھا اور 15 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد لاہور اسٹیشن پر اترا۔ بنا سوچے سمجھے گھر سے نکل آیا تھا، یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بھوک، سفر اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے سر چکرانے لگا۔ اسٹیشن کے بینچ پر بیٹھے بیٹھے کب رات سے صبح اور پھر صبح سے شام ہوئی پتہ ہی نہ چلا۔ بھوک کی شدت اتنی بڑھی کہ وہ بے اختیار بینچ پر سے اٹھا۔ اسٹیشن سے باہر ہجوم کے بیچ میں سے گزرتا۔ جب وہ سڑک پر پہنچا تو اس سے پہلے کہ کوئی ٹیکسی یا رکشہ لیتا، آنکھوں کے آگے چھا جانے والے اندھیرے کے باعث لڑکھڑایا اور سڑک پر تیزی سے آتی کسی گاڑی سے بری طرح ٹکرا گیا۔ اتنے گھنٹے بھوکے رہنے اور منجمد ہو کر ایک جگہ بیٹھے رہنے کے باعث اس کا مضبوط جسم بھی لاغر ہو چکا تھا۔ آخری منظر جو اس کی آنکھوں نے دیکھا، اس میں کچھ لوگ اس پر جھکے ہوئے تھے۔ اب جب آنکھ کھلی تو سب یاد آنے پر وہ حیرت سے ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ یہ کسی گھر کا درمیانے سائز کا کمرہ تھا جس میں ہر چیز بڑے سلیقے سے سجی ہوئی تھی۔ پلنگ سے کچھ دوری پر دیوار کے ساتھ لگی 3 کرسیوں کے آگے میز رکھا ہوا تھا۔ ایک طرف کتابوں کا بڑا سا ریک تھا جس میں ان گنت کتابیں بڑے سلیقے سے رکھی تھیں۔ لکڑی کے 2 پٹ والی الماری ایک طرف دیوار سے لگی تھی۔ بند کھڑکی پر سفید پردے لٹک رہے تھے اور لکڑی کا گہرے میرون رنگ کا پٹ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ نگاہیں گھما کر کمرے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا جب دروازہ کھول کر ایک عمر رسیدہ شخص کمرے میں داخل ہوئے۔ سینے تک آتی سفید داڑھی اور منور چوڑی پیشانی پر بنا محراب سجائے بڑے میاں سر پر ٹوپی رکھے ہوئے تھے، دوران کی طرف دیکھ کر بشاشت سے مسکرائے۔ ہاتھ میں اسٹیل کا بڑا سا گلاس تھام رکھا تھا۔ سفید قمیض شلوار اور ٹخنے سے اوپر کی ہوئی شلوار بڑی طمانینت سے سانس لیتے آگے بڑھے تھے۔ کیسے ہو بیٹا؟ اپنائیت بھرا پرسکون لہجہ۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا گلاس میز پر رکھا۔ دوران حیرت سے دیکھتے فوراً بستر سے اٹھنے کے لیے اوپر ہوا۔ سر میں شدید لہر اٹھی تھی۔ اٹھنے پر احساس ہوا کہ چوٹ صرف سر میں نہیں ٹانگ پر بھی لگی ہے۔ خود مت اٹھو بیٹا، چوٹ گہری ہے۔ بڑے میاں نے فوراً آگے ہو کر کندھے تھام لیے، پھر تکیے کے سہارے سے دوران کو بیٹھنے میں مدد کی۔ اسے بٹھانے کے بعد وہ مڑے اور میز پر سے گلاس اٹھانے کے بعد پلٹے۔ لو دودھ پیو، گرم ہے۔ گلاس دوران کی طرف بڑھا دیا۔ بڑا ہی جاذب نظر چہرہ تھا۔ دوران نے سپاٹ چہرے کے ساتھ ان کے سراپے کا جائزہ لیا۔ پی لو، بھوکے ہو کب سے؟ دوران کے ہاتھ نہ آگے بڑھانے پر گلاس کو مزید آگے کیا۔ دوران نے ایک نگاہ اٹھائے ان کے چہرے پر ڈالی اور پھر ایک نگاہ گلاس پر۔ لو پیو، شاباش۔ وہ بضد تھے۔ دوران نے ہاتھ بڑھا کر گلاس تھام لیا۔ دودھ نیم گرم تھا۔ بھوک کی شدت سے واقعی برا حال تھا۔ آہستگی سے گلاس منہ سے لگایا۔ دودھ میں مناسب میٹھا تھا اور اس وقت جس حالت میں وہ تھا، یہ دودھ دنیا کا سب سے بہترین مشروب لگ رہا تھا۔ بڑے میاں کمرے سے باہر چلے گئے تھے اور جیسے ہی اس کا دودھ کا گلاس ختم ہوا، وہ پھر سے کمرے میں داخل ہوئے۔ اب کی بار ان کے ہاتھ میں کچھ پلاسٹک کی ٹوکریاں اور ہاتھ میں مٹروں سے بھرا شاپر تھا۔ ٹوکریاں میز پر رکھ کر وہ دوران کی طرف پلٹے اور اس کے ہاتھ سے گلاس تھاما۔ بہت ناراض ہو زندگی سے؟ مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ دودھ کا گلاس میز پر رکھا اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ دوران کی طرف دیکھا۔ نہیں، مختصر جواب تھا، لیکن اس کے سوال پر حیرت ہوئی۔ تو پھر گھر والوں سے ناراض ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ دوران نے سپاٹ لہجے میں بیزاری سے جواب دیا۔ وہ اب سامنے لگی پہلی کرسی پر بیٹھ چکے تھے۔ ٹوکریاں میز پر سجا کر مٹروں سے بھرا شاپر کھولا۔ پھر کیسی بات ہے؟ کچھ تو ہے برخوردار۔ صبح سے اسٹیشن پر سر جھکائے بیٹھے بیٹھے رات کر دی، کیا کوئی منزل نہیں؟ دوران نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ بڑے میاں کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ وہ کیسے یہ سب جانتے تھے؟ نہیں، حیرت میں ڈوبی آواز ابھری۔ منزل تو ہوگی، بس تم راستہ بھٹک گئے ہو۔
वो मटर निकाल कर टोकरी में रख रहे थे। दुरान खामोशी से हैरत से उनकी तरफ देख रहा था। कोई बात नहीं, भटक जाते हैं अक्सर हम लोग, इंसान है ना, हो जाता है ऐसा भी। पर इसी रास्तों पर घन चक्कर मत बने रहना, मंजिल की शिनाख्त जरूरी है बेटा। सर को हिलाते वो बड़े जब से समझा रहे थे। आप कौन हैं? कैसे पता कि मैं स्टेशन पर? परेशान ना हो, स्टेशन की मस्जिद का इमाम हूँ और साथ वहाँ इस्लामी कुतब का भी बुक स्टॉल लगाता हूँ। तो मैं देख रहा था, सुबह से सर झुकाए बैठे थे। रात को जब मैं दुकान बंद करके घर के लिए रवाना होने लगा, तुम आगे आगे थे और देखते ही देखते बेहोश होकर गिर पड़े। पहले अस्पताल लेकर गया, फिर पट्टियाँ करवाकर घर लेकर आया। नीम बेहोशी में थे, इसीलिए कुछ याद नहीं तुम्हें। वो मटर छीलते ठहरे मुतवाजन लहजे में उसे आगाह कर रहे थे। दुर्रान ने नागवारी से खुद पर ओढ़े गहरे भूरे रंग के कंबल को देखा। अच्छा चलो छोड़ो ये सारी बातें, जरा अपने अब्बा का नंबर दो, बहुत परेशान होगा बेचारा। हाथों को पास पड़े कपड़े से पोंछते वो अब मेज पर पड़ा अपना मोबाइल फोन उठा रहे थे। दुर्रान ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा चलो अम्मा का दे दो, वो भी तो भूखी होगी बेचारी, परेशान हो रही होगी। दुर्रान के जवाब न देने पर वो अपनी ही क्या सराई लगाकर अगला सवाल कर रहे थे। अब की बार तो दुरान की पेशानी पर अनगिनत बल पड़े। नहीं है दोनों इस दुनिया में, लब खींचे सपाट लहजे में जवाब दिया। बड़े बहन या भाई? वो बला के ढीठ इंसान वाक़े हुए। दुर्रान ने कोफ्त से देखा। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, अब की बार नागवारी से जवाब दिया। वो पलंग से उठने की खातिर कंबल को अपने ऊपर से हटाता सीधा हुआ, लेकिन टांग पर शायद जख्म गहरा था। एक आह निकली मुंह से। उठो मत, उठो मत। नहीं उठा जाएगा बच्चे, जख्म गहरा है। वो मटर का छिलका मेज पर फेंकते तेजी से उठकर उस तरफ आए थे, लेकिन दुरान अनसुनी करता टांगे पलंग से नीचे उतार चुका था। मुझे जाना है, इस जख्म की परवाह नहीं, मुझे दर्द नहीं होता। लब भींचे पेशानी पर गहरे शिकन कम किए। ठीक है, ठीक कह रहे हो। चलो इस जख्म का न सही, जो अंदर जख्म लगे हैं उनके भरने तक ही रुक जाओ। कंधे पर दबाव डाले बड़े मियाँ उसके सर पर खड़े थे। पता है ना मुझे, कोई नहीं घर तुम्हारा और ना ही कोई मंजिल। मैं भी तो अकेला हूँ, कोई दिक्कत नहीं, जब तक चाहो रह सकते हो। यहाँ आपको नहीं होगी, लेकिन मुझे है दिक्कत, नागवारी से कहा और अपने जॉगर्स की तलाश में निगाह दौड़ाई। मालूम है तुम्हारी दिक्कत, वो खफीफ सा कहका लगाए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरने लगे। दुर्रान ने चौंक कर उनकी तरफ देखा। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, दुनिया में मौजूद हर इंसान को एक ही तराजू में नहीं तोला करते। बड़ी मोहब्बत से उन्होंने अपना बूढ़ा हाथ आगे करते कहा। दुरान अब उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। बैठ जाओ, बाहर बहुत सर्दी है, ये कराची नहीं लाहौर है, बड़ी अपनायत से कहा। दुरान ने फिर से आंखें सुकेड़ी। वो कैसे जानते थे वो कराची से आया है? आपको कैसे पता? तुम्हारे बैग में रखे कपड़ों से अंदाज़ा लगाया, कोई गर्म कपड़ा नहीं तुम्हारे पास, हालांकि पंजाब में तो बहुत ठंड है। और नाराज़ होकर घर से निकले क्यों? अगर अम्मा ने भेजा होता तो गर्म कपड़े तो पैक ज़रूर होते। वो उसकी बात काटते कमरे में खड़ी अलमारी की तरफ जा रहे थे। अलमारी खोली और वापस पलटे तो हाथ में एक गर्म हल्के भूरे रंग की मर्दाना शॉल थी। चलो ये शॉल ओढ़ लो। शॉल लाकर दुरान के पास खोलते हुए कहा। ले लो, बिल्कुल नहीं है, इस ईद पर मेरी बड़ी बेटी ने तोहफा दिया था। दुरान के हाथ आगे ना बढ़ाने पर मुस्कुरा कर कहा। दुरान ने आहिस्तगी से शॉल थामी और कंधों पर डाल ली। बड़े मियाँ ने हाथ के इशारे से उसे पलंग पर बैठने के लिए कहा और खुद मेज़ की जानिब बढ़ गए। उनकी शख्सियत में कुछ तो ऐसा था कि वो उनकी जिद के आगे घुटने टेक चुका था। दो बेटियां हैं मेरी, माशाल्लाह दोनों अपने अपने घर की हैं, और ज़ौजा पिछले साल नाराज़ होकर अकेला छोड़ गई। तब से बस हम दो रहते हैं यहाँ। वो कुर्सी पर बैठते बता रहे थे। दुरान चादर ओढ़े पलंग पर बैठ चुका था। दो मतलब वो अकेले नहीं थे, साथ कोई और भी था, लेकिन वो कौन? अगर बीवी भी नहीं है तो? दुरान ने दरवाजे की तरफ देखा, जहां पर्दे के पीछे से सुनसान बरामदा नजर आ रहा था। मत तलाश करो, दूसरा इस आंख से दिखाई नहीं देता, वो हर जगह है। उनकी बात पर दुरान ने चौंक कर चेहरे करो उनकी तरफ मुड़ा। वो मुस्कुराए। हम दो मतलब मैं और मेरा अल्लाह, जो हर इंसान की शहरक से भी ज़्यादा करीब है। जब किसी का कोई नहीं होता तब वो होता है, और इसका होना ही हकीकत है, बाकी तो सब फानी है, सब छोड़ देते हैं। बड़ी गहरी बात थी। उनके चेहरे की चमक और जहन की पाकीज़गी दुरान को जकड़ रही थी। मेरे बारे में जो सोच रहे हो दुरुस्त है, तसल्ली रखो, आराम करो, अभी कुछ देर में खाना बन जाएगा। मटर गोश्त बहुत मज़े का बनाता हूँ मैं। मटरों वाली टोकरी को उठाए वो खड़े हुए और फिर कमरे से बाहर निकल गए।
दुरान ने हैरत से चंद सेकंड खाली कमरे की इस कुर्सी को घूरा जहां कुछ देर पहले वो बड़े मियाँ बैठे थे। फिर आहिस्तगी से आंखें खोली और सर तकिए से टिका लिया। शायद कमरे के पास ही किचन था, इसीलिए बर्तन बजने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। अचानक तिलावत की खूबसूरत आवाज़ उभरी। दुरान ने पट से आंखें खोली। बड़े मियाँ किचन में खाना बनाते हुए सूरह मुल्क की तलावत कर रहे थे। दुर्रान ने आज से पहले इतनी खूबसूरत तलावत अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं सुनी थी। उसके जिस्म का रुआं-रुआं कान बन गया था। रीढ़ की हड्डी में एक नरम सी मीठी सी सनसनाहट उभरने लगी। कानों में पड़ती तलावत की आवाज़ सीधी दिल पर असर कर रही थी। अचानक ऐसा महसूस होने लगा जैसे तने असाबों को कोई नरमाहट से दबा रहा हो। उसकी आंखें बंद होने लगीं। अब बाकी सब आवाज़ें मद्दम हो गई थीं। बस तलावत गूंज रही थी। ब्योरली हिल्स रात के 11 बजे बादलों से ढके आसमान के नीचे घुप अंधेरे में डूबा था। दुरांग विलास के इस नीले और सफ़ेद रंग के मिलाप वाले हसीन कमरे में मुकम्मल खामोशी छाई थी। दुरान शाम का कमरे से निकला, अब कुछ देर पहले ही वापस आया था, सख्त तासुरात वाले संजीदा चेहरे के साथ। उसके पास से गुजरता स्लाइडिंग डोर खोलता बरामदे में निकला था। जवेरिया जो निगाहों से उसे देख रही थी। बरामदे में दाएं बाएं चक्कर काटते सिगरेट के कश लगाता। शायद वो जवेरिया के सोने का इंतजार कर रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद कमरे में वापस आया। इस सारे लम्हों में वो बेड पर बैठी मोहब्बत से उसकी हर हरकत को देख रही थी। ऊपरी जर्द कोट उतार दिया था, अब नीचे सुर्ख फ्राक जेबतन थी जिसके चूड़ीदार आस्तीनें कलाइयों से नीचे आधे हाथों तक को ढांप रही थी और फ्राक का घेरा टखनों को छू रहा था। फिरोजी स्कार्फ इसी तरह नमाज की सूरत में चेहरे का तवाफ कर रहा था। तुरान कमरे में वापस आकर सोफे पर बैठ चुका था। जवेरिया की खुद पर टिकी शौक निगाहें बेचैन कर रही थीं। शाम को न जाने कैसा सहर था जो तारी हुआ और वो जवेरिया के सामने बैठकर वो कर गया था जिससे 4 सालों से वो जंग कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके बिल्कुल पास आ खड़ी हुई। दुरान ने अनजान बनकर टीवी पर निगाहें जमा दी। वो बड़े एतमाद से दुरान के सामने सोफे पर विराजमान हुई तो वो सटपटा गया। वो बहुत करीब बैठी थी। पूरी खुली आंखों में बेपनाह मोहब्बत थी जो दुरान के चेहरे पर जमाए मुस्कुरा रही थी। ओह खुदाया, ये मुस्कुराहट! मुझे कुरान पढ़ा दें। मदम सी आवाज़ का दिलतरन खामोश कमरे में गूंजा था। दुरान ने लफ्ज़ सख्ती से भींचे। रिमोट पर हाथ की गिरफ्त इतनी बढ़ी कि वो बेचारा चरचरा उठा। खामोशी का दौरानिया 1 2 3 सेकंड। मैं नहीं पढ़ा सकता। सपाट लहजा। वो निगाहें फिर बेरुखी से स्क्रीन पर जमा चुका था। शाम वाली नरमाहट चेहरे पर बिल्कुल मौजूद नहीं थी। क्यों इतनी खूबसूरत तलावत, ऐसा प्यारा अदायगी तलफ़्फ़ुज़, अगर किसी को सिखा दें तो सवाब। अपनी जगह पर जाएं प्लीज़। दुरान के करख्त आवाज़ गूंजी। वो हाथ से बेड की तरफ इशारा कर रहा था। जबड़े बाहर को भर रहे थे। नहीं, मुझे आपसे ही कुरान पढ़ना है और तजवीज़ सीखनी है। उफ, ये एतमाद! बड़ा लाड भरा लहजा था। शायद दुरान की शाम वाली अनायत ने उसकी हौसला अफजाई कर दी थी। कितनी बड़ी गलती कर बैठा था वो। दुरान ने दांत पीसे। मुझे कुरान नहीं आता। तजवीज़ और तलावत तो आती है। प्यार से देखते फ़ौरन बात उचक ली। फॉर गॉड सेक, क्या बहस कर रही हैं? ये मोबाइल में पूरी दुनिया जहान के कारी हजरात की तलावत मौजूद है। झुंझलाकर वो अपनी जगह से उठा और उसके मोबाइल की तरफ इशारा किया जो सोफे के कोने में पड़ा था। आप बस रोज़ रात को आधा घंटा दे दें मुझे प्लीज़। बड़े प्यार से मिन्नत की। दुरान ने घूर कर उसकी तरफ देखा, फिर गुस्से से कमर पर हाथ रख के शीशे की दीवार के पार देखा। एहसाब ज़ब्त की आखिरी हदूद को छूने लगे थे। देखें, प्लीज़ मना मत करें। मैंने आज तक किसी की भी तलावत सुनकर ऐसा महसूस नहीं किया जैसे आपकी। प्लीज़ आप मुझे सिखा दें। नहीं, मैं नहीं सिखा सकता। चंद कदम मज़ीद फासला बढ़ाते हुए वो अब तकरीबन शीशे की दीवार के पास खड़ा था। बाहर जलते बल्ब की रोशनी में वो दोनों कुर्सियाँ खाली थीं जहाँ शाम को वो आमने सामने बैठे थे। इनफैक्ट आपसे बेहतर कोई नहीं सिखा सकता। मैं बहुत मेहनत करूँगी। अच्छा चलें, बस रोज़ के 20 मिनट सिखा सकते हैं ना? 20 मिनट ही दे दिया करें। मैं बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। वो तो आज पता नहीं किस खुशफहमी में मुब्तला थी। दुरान की मिन्नत करते बेसाख्ता उसके बाजू को थाम लिया था। वो करंट खाकर एक झटके से उसका बाजू छुड़ाए दूर हुआ था। 3 लंबे टक भरता सोफे तक पहुंचा, झपटकर उसका मोबाइल उठाया और सूरत से उस तक पहुंचा। ये पकड़ो मोबाइल और बाहर जाकर सीखो, इससे जो सीखना है, और आइंदा किसी मामले में मेरा दिमाग मत खाना। झटके से उसका बाजू थामकर मोबाइल उसके हाथ पर रखा और गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ स्लाइडिंग डोर खींचकर खोला, उसे बाहर धकेला।
वो बुरी तरह लड़खड़ा कर फर्श पर संभली थी। पाँव नंगे थे। एक धमाके के साथ दरवाज़ा बंद किया, लॉक घुमाया। गुस्से से तने हिसाब लिए कमरे से बाहर निकल गया। वो हुक्कों की तरह शीशे के बाहर खड़ी उसे जाता देख रही थी। पीछे स्विमिंग पूल के पानी में बल्ब की रोशनी का अक्स जगमगा रहा था। ठंडा फर्श नंगे पैरों से जिस्म में सरायत करने लगा था। इनल लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था। जब पास से किसी के गुजरने का एहसास हुआ, निगाह उठाकर देखा तो दुरान गुस्से में भरा पोर्च के दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। दुरान, कहाँ जा रहे हो? इनल की आवाज़ देने पर वो रुका। गुस्से से हाथ में पकड़ी कार की चाबी को मरोड़ा। कहीं नहीं, तेजी से कहकर कदम पोर्च से पहले आने वाली राहदारी की तरफ बढ़ा दिए। अरे भाई, इतनी रात हो रही है, रुको मैं भी साथ चलता हूँ। इनल छलांग लगाकर अपनी जगह से उठा। दुरान के चेहरे की सख्ती खटक गई थी। दुरान की तरह वो भी नाइट ट्राउजर शर्ट में मलबूस था। मौसम अच्छा था, इसीलिए आज लाउंज की बड़ी स्क्रीन पर वो अपनी पसंद की फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाकर अभी बैठा ही था। जब तक वो दुरान के पीछे भागता पोर्च में पहुंचा। दुरान बुगाटी का ड्राइविंग डोर खोले खड़ा था। तीर की तरह भागता हुआ दुरान से पहले गाड़ी की फ्रंट सीट पर विराजमान हुआ। दुरान झुंझुला कर झुका। उतरो गाड़ी से, मुझे अकेले जाना है। दुरान ने ड्राइविंग सीट की तरफ से दरवाजे पर हाथ रखकर अंदर झांका। इनल मोबाइल स्क्रीन पर निगाहें जमाए अनसुनी किए हुए था। सुना नहीं? उतरो। नहीं उतर सकता, चलो जहाँ जाना है, इनल ने लापरवाही और ढिठाई से कहा। दुरान ने खूनख्वार निगाह उसके ढीठ सरापे पर डाली और गुस्से से ड्राइविंग सीट संभाल ली। बुगाटी टायर चरचराती आवाज़ के साथ गेट से बाहर निकलकर ब्योरली हिल्स की शफाफ सड़क पर दौड़ने लगी थी। अब बताओ कि क्या हुआ? जवेरिया से कोई बात हुई है क्या? इनल ने गहरी सांस लेते पहलू बदलकर रुख उसकी जानिब किया, जो गुस्से में गाड़ी की रफ्तार बढ़ा रहा था। कमरे से वो जिस तरह मुंह फुलाकर निकला था, पहला अंदाजा तो यही लगाया जा सकता था। उसे यही बात तो समझ नहीं आती कि मैं उसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं, बिला वजह सर खाती है। सड़क पर निगाहें जमाए गियर बदला। दुरान, यार बहुत अच्छी मजहबी लड़की है। दुरान के हकारत भरे लहजे पर वो जवैया का साथ दिए बिना ना रह सका था। होगी मजहबी, मैं क्या करूं? स्टीयरिंग गुस्से में घूमती सड़क के संग मोड़ा था। बारिश बरसने लगी। गाड़ी के फ्रंट शीशे पर वाइपर चलने लगे। हुआ क्या है ये तो पता चले। इनल ने हाथ हवा में उठाते इस्तफसार किया। गलती हो गई है मुझसे। दुरान के गुस्से से भरी आवाज़ गूंजी। बाहर बिजली जोर से कड़की। बारिश की रफ्तार और तेज हो चुकी थी। जुटला कैसे सकता है इस बात को? तू है ही हाफिज कुरान, अगर इसको बंद कमरे में पढ़ा देगा तो इसमें क्या बुराई है भाई? इनल ने कॉफ़ी के मग को अपनी तरफ घिसकाए कहा। कॉफ़ी शॉप में बजती मौसीकी की आवाज़ गूंज रही थी। वो इनल को तलावत वाली बात बता चुका था, जिस पर इनल जवेरिया का साथ दे रहा था। मुझ जैसा गुनहगार जो पिछले 4 साल से कुरान को हाथ लगाना तो दूर की बात, खुद को मुसलमान नहीं कहता, इसको पढ़ाने बैठ जाए, वाह! दुरान ने कॉफ़ी के मग को मुंह से लगाए नखवत से नाक चढ़ाई। कॉफ़ी शॉप के शीशों के बाहर तूफानी बारिश जोरों शोर से बरस रही थी। बाहर चलते लोगों की छतरियां तक उड़ रही थीं। शीशों से बारिश के तपेड़े आकर टकरा रहे थे। खुदा से गाफिल होने का मतलब ये नहीं कि खुदा तुम्हें भूल गया है, इन्हं ने संजीदगी से सर झुकाए कहा। फिर चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में झांका। ज़्यादा तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि कुरान हाफिज के दिल में कुरान महफूज होता है, चाहे जितने साल भी कुरान को हाथ ना लगाए, लेकिन दिल तो धड़कता है ना रोज़। वो दुरान को देखकर बड़े प्रेम से समझा रहा था, जब दुरान एक झटके से अपनी जगह से उठा। जेसिका? इनल ने फौरन दुरान की निगाहों का ताक़ुब किया। कॉफ़ी शॉप के एक तरफ शराब के बार के करीब जेसिका कुर्सी पर विराजमान थी। गुलाबी रंग की शर्ट के नीचे जीन्स पहने, गहरे मेकअप से मुज़य्यन चेहरा लिए। हाँ वही है, लेकिन इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? इनल ने हैरत से भवें इकट्ठी की। रात के 2 बज रहे थे। इन्हें बाहर आए 3 घंटे हो चुके थे। लड़के के साथ है? जेसिका के मेज़ की तरफ लुढ़कते लड़के को देखकर दुरान की फीकी सी आवाज़ उभरी थी। लड़का वाइन से भरे 2 गिलास थामे मुस्कुराता अब जेसिका के सामने वाली कुर्सी पर बैठ रहा था। दुरान ने एकदम मुस्तरब हालत में पेशानी सहलाई। क्या हुआ? वो लड़का? क्या हुआ इस लड़के को? इनल के सवाल पूछने पर वो गुस्से से 2 कदम आगे बढ़ा। इनल ने कंधे से पकड़कर रोका। एक मिनट दुरान, क्या करने जा रहे हो? वो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, मुझे जेसिका को बचाना है, दुरान ने बौखलाए लहजे में कहा। रुको, जेसिका हमें नहीं जानती, वो कभी यकीन नहीं करेगी कि हम सच कह रहे हैं। उस लड़के के बारे में कैसे बचाओगे उसे?
इनल ने जबरदस्ती उसका कंधा थाम कर उसके कदम रोके थे। डोरान के मोबाइल की घंटी पर दोनों की तवज्जो मोबाइल की जानिब मबजूल हुई। डोरान ने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर रोजीन का नंबर जगमगा रहा था। हेलो सर, कहाँ हैं आप? वो मैं रोजीन की बौखलाई सी आवाज़ उभरी थी। वो बेहद घबराई हुई लग रही थी। क्या हुआ है, जल्दी बोलो, डोरान ने भवें सुकेट कर गुस्से से कहा, जबकि निगाहें सामने जेसिका पर जमी थी, जो सामने बैठे लड़के को शर्मा कर देख रही थी। सर, जवेरिया मैम पता नहीं कैसे कमरे के आउटडोर में लॉक रह गई थी। मैं तो आपसे कॉफ़ी का पूछने कमरे में आई तो देखा उनकी हालत बहुत ख़राब है, मुकम्मल भीगी हुई हैं, जिस्म नीला हो रहा है, ना होश आ रहा है। एक धमाका हुआ था, बेसाख्ता उसका हाथ माथे पर गया। वो गुस्से में आउटडोर के लॉक को 2 दफ़ा घुमा आया था। सर जल्दी पहुँचे, मैम को होश नहीं आ रहा। रोजीन की घबराई आवाज़ उसके कानों में पड़ी तो गैर मुहर्रिक वजूद में हरकत हुई। वो कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकता था, लेकिन गुस्से में वो अनजाने में आउटडोर को लॉक कराया था। रोजीन, तुम जवेरिया को लेकर अस्पताल पहुंचो। मैं ड्राइवर को कॉल कर रहा हूँ। गार्ड साथ होंगे तुम्हारे। मैं बस कुछ ही देर में पहुंचता हूँ। परेशान लहजे में वो रोजीन को हिदायत दे रहा था जब इनल की बेचैन आवाज़ कंधे के पास सुनाई दी। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों हो? इनल, जो तब से उसके चेहरे के उतार चढ़ाव और परेशानी को देख रहा था, मुस्तरिब लहजे में इस्तफसार किया। डोरान हवास बाख्ता उसकी जानिब पलटा। इनल, जेसिका इस लड़के के साथ हरगिज़ नहीं जानी चाहिए। मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम यहाँ संभालो। कुछ गड़बड़ करने वाला है ये लड़का। एक ने निगाह फिर कुछ दूरी पर मौजूद मेज़ पर डाली। जेसिका इस लड़के के हमरा हंस रही थी। हुआ क्या है डोरान, और मैं कैसे बचाऊंगा? मतलब मुझे कुछ नहीं पता, जो करना है करो, मगर जेसिका किसी हालत में इस लड़के के साथ ना जाने पाए। इन पर नज़र रखो, डोरान ने झुंझलाकर दांत पीसते कहा। मेज़ पर से गाड़ी की चाबी उठाकर इनल के हवाले की। तुम कैसे जाओगे? इनल ने चाबी पर एक नज़र डालकर हैरत से सवाल किया। मैं टैक्सी से जा रहा हूँ, इज्जत में जवाब देकर वो तेज़ तेज़ कदम कॉफ़ी शॉप के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ा चुका था। बारिश की रफ्तार कदरे कम हो चुकी थी, लेकिन अब भी तेज़ हवा और बिजली कड़क रही थी। होटल से बाहर निकलते ही वजूद में घुसती सर्दी से पहला ख्याल उसको जवेरिया का ही आया था। जबड़े सख्ती से पेवस्त किए अपनी हथेली पर जोर का मुक्का जड़ा। वो सुर्खराख में चेहरा बेपनाह मासूमियत सजाए उसकी निगाहों के सामने घूम गया था। टैक्सी डोरान के सामने रुक चुकी थी। वो बरके रफ्तारी से उसमें सवार हुआ था। इनल ने बगौर सामने मेज़ पर बैठी जेसिका को देखा। लड़का हंसते हुए उससे कोई बात कर रहा था। डोरान की बातगश जहन के पर्दों में गूंजी। वो अब जेसिका के बजाय लड़का कुछ करने वाला है, हरकत पर गौर कर रहा था। मेज़ के नीचे वो पैंट की जेब में से कुछ निकाल रहा था। इनल का माथा ठनका। वो ये सब जेसिका से मख्फी होकर कर रहा था। जेसिका से बातों के दौरान उसने अचानक एक तरफ इशारा किया और जैसे ही जेसिका चेहरे का रुख मुड़े, उसने अपने सामने रखे दोनों मशरूब के गिलासों में से एक गिलास में कोई मेडिसिन फेंकी। उसने ये अमल बहुत तेजी से किया और अगले ही लम्हे दोनों गिलास हाथों में उठाकर हिलाने लगा। इनल सूरत से अपनी जगह से उठा। उसके पहुंचने तक वो लड़का गिलास जेसिका के आगे रख चुका था। इससे पहले कि जेसिका का हाथ गिलास तक पहुंचता, इनल उनकी मेज़ पर पहुंचकर एक कुर्सी को पास करते तेजी से बैठ गया था। दोनों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। एक्सक्यूज़ मी, क्या हम आपको जानते हैं? लड़के ने नागवारी से भवें चढ़ाए सवाल किया। इनल टांग पर टांग चढ़ा रहा था। नहीं, मुस्कुराकर जवाब दिया और फिर जेसिका की तरफ देखा। वो हैरत से अपनी छोटी छोटी बुरी आंखों में हैरत लिए बैठी थी। तो आप यहाँ क्यों बैठे? लड़के ने गुस्सीले लहजे में सवाल किया। ये करने के लिए। इनल ने बड़े आराम से थोड़ा सा जिस्म आगे करते जेसिका के सामने रखे गिलास को उठाकर लड़के के सामने रख दिया और लड़की के गिलास को उठाकर जेसिका के सामने रख दिया। ये क्या हरकत है? कौन हो तुम? लड़का उछलकर अपनी जगह पर से उठ खड़ा हुआ। जेसिका अब हैरत में मुब्तला हो चुकी थी। कुछ भी नहीं, एक जैसे गिलास हैं, तुम गिलास में से पियो। इनल ने बड़े आराम से मुस्कुराते जवाब दिया। अब की बार जेसिका झुंझलाकर इनल की तरफ रुख मोड़ चुकी थी। ए मिस्टर, क्या मसला है तुम्हारे साथ? मसला मेरे साथ नहीं, इस गिलास के अंदर भरे मशरूब के साथ है। बड़े पुरसकून अंदाज में लड़के के सामने रखे गिलास की तरफ इशारा किया। लड़के के चेहरे की रंगत एक पल में तब्दील हुई, जबकि जेसिका हैरत से इनल की तरफ देख रही थी। इस मशरूब में इस लड़के ने तुमसे छुपाकर कुछ मिलाया है। बकवास मत करो। क्या मसला है तुम्हारे साथ? ये झूठ बोल रहा है जेसी। लड़के ने गड़बड़ाकर जेसिका की तरफ देखा। अच्छा ठीक है, मैं झूठ बोल रहा हूँ,
तो ये ग्लास तुम पी लो और ये वाला ये लड़की पिएगी। इनल ने घुमाकर टांग पर से टांग उतारी और बड़े भरम से कहा। लड़के ने फौरन नफी में सर हिलाया। मैं क्यों पीऊंगा? जैसी ये पागल है। उठो यहाँ से, हम चलते हैं। वो तेजी से कुर्सी को पीछे धकेल कर आगे हुआ। 1 मिनट। इनल ने हाथ खड़ा किए उसे रोका। जेसिका नासमझी से दोनों की तरफ देख रही थी। लड़का लबों को गुस्से से भींच रहा था। सुनो जेसिका, उस लड़के ने तुम्हारे मशरूब में कुछ मिलाया है। मैंने खुद देखा है। जेसिका ने गुस्से से भवें इकट्ठी की। निक ऐसा नहीं कर सकता। तुम होते कौन हो यहाँ आकर हमारे ग्लास तब्दील करने वाले? मैं एक अच्छा शहरी हूँ, तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। मेरी बात पर यकीन नहीं तो बोलो अपने इस निक को कि ये मशरूब पी ले। निक, ग्लास उठाओ और पी लो, जेसिका ने वसूख से कहा। निक के चेहरे पर हमाइयाँ उड़ी। जेसी, छोड़ो इसे, यहाँ उठो यहाँ से। वो घबराहट में तेजी से जेसिका की तरफ बढ़ा था। निक, तुम वो मशरूब पियोगे? अब की बार जेसिका ने सख्ती से कहा। क्या पागलपन है? तुम इस बेवकूफ़ की बात पर यकीन कर रही हो? कुछ नहीं है इस मशरूब में। तो फिर पी लो ना निक, इसके मुंह पर जवाब दो इसको। जेसिका ने नखवत से नाक चढ़ाकर इनल की तरफ देखा। इनल जवाबी मुस्कुरा दिया। कभी नहीं पिएगा निक। इनल ने खफीफ सा कहका लगाया। निक, इज्जत का मामला बन गया है, उठाओ और पियो ये ग्लास। जेसिका एक झटके से अपनी जगह से उठी थी। तुम पागल हो गई हो। इस लड़के की बात पर यकीन करके तुम मुझ पर शक कर रही हो। मैं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़कर, इस ग्लास के साथ और इस पागल के साथ। वो दांत चबाता अपनी बात कहकर तेजी से कैफे के बैरूनी गेट की जाने बढ़ गया था। इनल ने मुस्कुराकर हैरान बैठी जेसिका की तरफ देखा। हम पता चला सकते हैं इसमें क्या मिलाया है इसने? इनल ने एहतियात से उसका ग्लास उठाया। जस्ट शट अप, तुम हो कौन? मेरा दोस्त मुझसे नाराज होकर चला गया। जेसिका ने जोर से मेज पर हाथ मारा। अच्छा है, कल तुम्हें बर्बाद कर देता, इससे अच्छा है नाराज हो गया। तुम कैसे इस बात को इतनी यकीन से कह सकते हो? क्योंकि मैंने उसे देखा है, इनल ने बर्जिस्ता जवाब दिया। मैं साबित कर सकता हूँ। इस मशरूब को अभी लैब टेस्ट के लिए भेज देते हैं, इनल पूरे यकीन से कहने लगा। अब की बार जेसिका सोच में पड़ गई। हॉस्पिटल की शिफाफ राहदारी में लगे सफ़ेद बेंच पर वो सर झुकाए बैठा था। स्याह हुड ने चेहरे को मुकम्मल ढांप रखा था। कुछ दूरी पर गार्ड्स खड़े थे और डुरान के बिल्कुल सामने बेंच पर रोजीन बैठी थी। वो गले में पहने स्लीव के निशान को मजबूती से थामे आंखें बंद किए दुआ गो थी। बारिश अगर इतनी तूफानी ना होती तो शायद मामला इतना संगीन ना होता, मगर बारिश के झक्कड़ आउटडोर के बरामदे क्या कमरे की खिड़कियों तक टकरा रहे थे। जवेरिया के वजूद पर कोई गर्म कपड़ा ना होने और पाँव नंगे होने के बायस वो सर्दी और इस तूफान यख हवा को ज़्यादा देर बर्दाश्त ना कर सकी और बेहोश हो गई थी। बेहोश होने की वजह से बारिश का पानी उसके फेफड़ों तक पहुंच चुका था। उन्हें अस्पताल में आए घंटा होने को था। वो यूं ही शल होते एसाब के साथ सर झुकाए बैठा था। ज़हन एक ही जगह मुंजमद हो चुका था। जब वो आउटडोर का लॉक घुमा रहा था, मुठियाँ जोर से भींचे वो खुद को जवेरिया की हालत का जिम्मेदार समझ रहा था। हर बार की तरह उसकी लाख कोशिश के बावजूद वो लम्हा पलट कर वापस नहीं आ सकता था। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर उसने तीर की तरह सर उठाया और अगले ही लम्हे वो डॉक्टर के बिल्कुल सामने खड़ा था। फ्रेड, कैसी है वो? बेचैन लहजा वो डॉक्टर फ्रेड के चेहरे को बगौर देख रहा था, जहाँ परेशानी के सिवा और कुछ भी रकम नहीं था। तुडांग, इतनी देर इतनी ठंड में वो कैसे भीगती रही? इतनी बेपरवाही, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? फ्रेड ने बेयकीनी से दुरान की आंखों में देखा। वो उसका पर्सनल डॉक्टर था और इस लिहाज से उसकी पूछगछ का तरीका कार भी मुख्तलिफ था। फ्रेड, सब गलती से हुआ, मैं घर पर नहीं था। प्लीज़ मुझे बताओ कैसी है वो? सब ठीक है ना? दुरान, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, हालत संगीन ही है। सर्दी एक तरफ, बारिश में मुसलसल 3 घंटे भीगने की वजह से उसके जहन की झिल्ली मुतवर्रम होकर बहुत बुरी तरह मुतासर हुई है। अगर उसे अगले 24 घंटों में होश नहीं आया तो ब्रेन डेथ कन्फर्म है। फ्रेड ने निगाहें चुराईं। फ्रेड, नहीं, तुम कुछ करो, मतलब। दुरान ने हड़बड़ाहट में कहा, फिर तेजी से आगे हुआ। कहीं और ले चलें इसे कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। दुरान, तुम जानते हो ना कि बहुत बेहतरीन अस्पताल है जहाँ हर सहूलत मौजूद है। उसके फेफड़ों को साफ कर दिया गया है, लेकिन वो बेहोश है। अगर होश नहीं आया तो? फ्रेड ने लब खींचे अफसोस से गर्दन को दाएं बाएं जुम्बिश दी। सामने खड़े शख्स की पत्थर होती आंखों को एक नज़र देखा और कदम आगे बढ़ा दिए। दुरान ठहने के से अंदाज में सोफे पर बैठ गया था। सुबह रात की बारिश के बायस ठंड मामूल से ज़्यादा थी।
सूरज आसमान पर चमक तो रहा था, लेकिन उसकी किरणें जमीन तक अपनी तपिश मुंतकिल करने से आ रही थीं। शिफाफ तारकोल में लिपटी नागिन सी बल खाती सड़कें अब भी रात की बारिश की वजह से गीली थीं। ये बेवर्ली हिल से बाहर निकलकर नज़दीकी कैलिफोर्निया का मुतवस्सित तबके का रिहायशी इलाका था। इस इलाके में मौजूद लोग ज़्यादातर बेवर्ली हिल्स की मुख्तलिफ जगहों में मुलाजमत करते थे। चूँकि वो बेवर्ली हिल्स की रिहाइश अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसीलिए उनकी रिहाइश यहाँ बने छोटे छोटे हटनुमा घरों में थी। सियाह डेटसन के टायर अपनी रफ्तार को कम करते हुए बड़ी सुसरवी से एक छोटे से घर के आगे रुके थे। घर का सब लकड़ी का एक पट वाला दरवाज़ा अनगिनत मुख्तलिफ रंगों के फूलों की बेलों से ढका हुआ था। घर के बिल्कुल सामने रुकने के बाद इनल ने गाड़ी का शीशा सुसरवी से नीचे किया और आंखों को सिकोड़कर दरवाजे की तरफ देखा। आंखों पर स्याह ग्लासेस, नीली और सफ़ेद धारीदार आस्तीन आधी आस्तीन वाली टी शर्ट के साथ नीली जीन्स सेब तन किए वो अपने पेशावराना अंदाज में काफ़ी हद तक मुख्तलिफ लग रहा था। गाड़ी से नीचे उतरकर दरवाजे के सामने वो चंद सेकंड के लिए पुरसोच निगाहों को दरवाजे पर गाड़े रुका था और फिर दीवार पर लगी घंटी पर हाथ रख दिया। पैंट की जेबों में हाथ डाले उसे अभी 3 मिनट इंतजार करना पड़ा था कि दरवाज़ा खुल गया। जेसिका की आंखें हैरत से पूरी खुल गईं। हल्के गुलाबी रंग की ढीली सी शर्ट के नीचे स्याह ट्राउजर पहने वो निकरी निकरी इस हसीन सुबह का हिस्सा लग रही थी। बुरी आंखें हैरत से सामने खड़े इनल को देख रही थीं। आप? हैरानगी से वो कभी इनल और कभी उसकी गाड़ी को देख रही थी। जी मैं, इनल ने मुस्कुराकर सर हिलाया। कल रात वाइन को लैब टेस्ट में देने के बाद वो जेसिका को उसके घर तक छोड़ गया था। वो रात 3 बजे अपने घर पहुंची और अब सुबह 9 बजे इनल फिर से जेसिका के सामने खड़ा था। आप पीछे क्यों पड़ गए हैं मेरे? रात घर क्या ड्रॉप कर दिया, सुबह होते ही मुंह ठाक कर चले आ गए। जेसिका नफरत से पेशानी पर बल डाले उस पर चढ़ दौड़ी थी। अरे अरे, थम तो ले मैडम, आप गलत समझ रही हैं। मैं आप पर लाइन मारने हरगिज नहीं आया। इनल के जवाब पर वो तिलमिलाकर खड़ी थी। गुस्से से गुस्से गुस्से से मुंह वाह हुआ। इनल ने गड़बड़ा कर बात संभाली। मेरा मतलब है, आप भूल गई हैं कि रात हम जो वाइन टेस्ट लैब में देकर आए थे, 10 बजे उसकी रिपोर्ट मिलनी है, तो मेरा ख्याल है कि आपको साथ चलना चाहिए। हाँ, याद आ गया। रुको, मैं तैयार होकर आती। इनल के तफसील से जवाब देने पर उसकी पेशानी पर बल कम हुए। जेसिका के तैयार होने की बात पर इनल ने उसके सरापे को ऊपर से नीचे जांचती निगाहों से देखा। मजीद तैयार होना बाकी है? मतलब? वो चौंक कर भवे उठाई पलटी। इनल बेसाख्ता निकल जाने वाले जुमले पर सटपटाकर सीधा हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि हम लैब टेस्ट रिपोर्ट लेने ही तो जा रहे हैं। आप ठीक ही तो हैं। कंधे उचकाए और स्याह चश्मा उतार कर एक दफ़ा फिर से उसे बगौर देखा। गुलाबी शर्ट का रंग उसकी चमकती गालों पर अपना अक्स डाले दे रहा था। एक्सक्यूज़ मी, अपने काम से काम रखें, और अगर आज इस वाइन की रिपोर्ट क्लियर निकली तो याद रखना, मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। छोटी सी आंखें मजीद चुंधी किए वो उसे खबरदार कर रही थी। इनल के माथे पर एकदम से बल पड़े। मैडम को अभी तक यकीन ही नहीं आया था। और अगर मेरी बात सच हुई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुर्की बतुर्की जवाब दिया। जेसिका उसके जवाब पर भौंचका रह गई थी। ना जान ना पहचान। होश में तो हैं आप? बिल्कुल होश में हूँ, बड़े रोब से कहा, लेकिन अगले ही लम्हे जेसिका के तेवर देखकर फौरन शर्ट के कॉलर दुरुस्त करते बात को संभाला। मेरा मतलब था कि वो फिर आपकी तरफ मेरी ट्रीट बनती है ना? किस खुशी में? जेसिका ने सीने पर हाथ बांधे इस्तेज़ाइया पूछा था। आपकी जान बचाई उस दरिंदे से, इस खुशी में, बड़ी दीदा दिलेरी से जवाब दिया था। जेसिका ने तंजिया लबों को ऊपर चढ़ाए उसकी तरफ देखा और जोर से कोई जवाब दिए बिना उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। बदतमीज़ है ये भी, कम अज़ कम इंसान अंदर ही बिठा लेता है। चश्मा फिर से आंखों पर चढ़ाए सीटी बजाते इर्द गिर्द देखा था और फिर कार में आकर बैठ गया। 10 मिनट बाद वो घुटनों तक आती सुर्ख फ्रॉक पहने ऊंची पोनी टेल के साथ बाहर आई थी। हल्का सा मेकअप और कंधे से हल्का पूरा लेदर बैग। इनल उसकी गाड़ी तक पहुंचने के लिए लम्हे में टिकटिकी बांधे उसे देखता रहा। वो खूबसूरत थी। बेकरी की वर्दी में सर पर टोपी लिए वो बहुत मुख्तलिफ लगती थी, लेकिन रात और अब पहली बार वो उसको इस हुलिये में देखकर उसकी खूबसूरती को दिल में दाद दिए बिना न रह सका था। जैसे ही वो फ्रंट सीट पर बैठी, इनल होश में वापस आया था। वो चिंगम चबाते उसे चलने का इशारा कर रही थी। इनल ने हल्का सा मुस्कुराकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। अस्पताल के इस गर्म कमरे में खामोशी का राज था। जदीद तबी आलात से लेस कमरे में जवेरिया सफ़ेद चादर में लिपटी बेड पर लेटी थी। उसे होश में आया आज दूसरा दिन था, लेकिन अब भी नकाहत के बायस नीम बेहोशी में थी। अस्पताल के हल्के सब्ज रंग के गाउन में मलबूस
वो इन 3 दिनों में ही सूख कर कांटा हो गई थी। नाक पर अब भी ऑक्सीजन मास्क मौजूद था और आंखों के सोजिश ज़दा पपोटों पर मौजूद वेन्स नीले रंग की होकर वाज़ेह थीं। उसके बेड के करीब मौजूद कुर्सी पर बैठा वो यकटक उसके बसे मुर्दा जर्दी माइल चेहरे पर निगाह जमाए हुए था। वो दुरान मलिक जिंदगी में पहली दफ़ा खौफज़दा हुआ था, बहुत खौफज़दा। वो 24 घंटे जिसमें जवेरिया जिंदगी और मौत के दरमियान झूल रही थी, वो आंख झपकना तक भूल गया था। एक खलिश और एहसास जुर्म को छोड़कर कुछ और एहसास भी था जिसने दुरान मलिक के मजबूत वजूद को हिलाकर रख दिया था। ऐसा एहसास था जैसे शाम के अंधेरे वजूद में फैल रहे हों, ऐसी शाम जिसकी कभी सहार नहीं होगी। उसके वजूद का रुआं रुआं अल्लाह से जवेरिया की ज़िंदगी की दुआ मांग रहा था और फिर अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली। जवेरिया को होश आ गया था। उसको तो होश आना था कि उसके दिल की दुनिया यकसर बदल गई। ज़िंदगी में पहली दफ़ा वो किसी लड़की के लिए वो एहसासात महसूस कर रहा था जो आज से पहले उसने कभी किसी के लिए नहीं किए थे। बेड पर नहीफ हालत में लेटी वो आम सी शक्लो सूरत वाली लड़की उसके दिल के कुफल तोड़ चुकी थी। दिल के आगे धड़ा पत्थर पाश पाश हो चुका था। स्याहुड में बिखरे बाल और थके से चेहरे के साथ वो कुर्सी के बाजू पर कोहनी टिकाए हाथ को लबों पर धरे निगाहों को मुतवातिर उसके चेहरे पर जमाए था जब अचानक जवेरिया की पलकों में होने वाली जुम्बिश पर वो सूरत से सीधा हुआ। वो आंखें खोलने की कोशिश कर रही थी। दुरान अब कुर्सी से उठकर बेड के करीब उसके सर पर आ खड़ा हुआ था। वो 10 सेकंड बल्कि फड़फड़ाने के बाद अब आंखें खोल रही थी। दुरान बेसाख्ता उमड़ आने वाली खुशी के बायस मुस्कुरा दिया था। जवेरिया ने आहिस्तगी से पलकें नींद बाकी। धुंधला सा मंजर वाज़ेह होने लगा। उस पर झुके दुरान का चेहरा वाज़ेह हो गया। वे तासुर स्याह बेरौनक आंखें दुरान के लबों पर मौजूद मुस्कुराहट देख रही थी। कैसी हो? आहिस्तगी से गंभीर लहजे में पूछा था। सब। जवेरिया के चेहरे पर यकदम से रंग लहराया था। दुरान के कमरे के बाहर आउटडोर का वो रूह परवर मंजर जहन के पर्दों के सामने सर पटकने लगा। दुरान के कमरे से निकल जाने के बाद वो कुछ देर तो यूं ही खड़ी उसे देखती रही। फिर सर्दी के बढ़ते एहसास पर तेजी से दरवाजे की जानिब बढ़ी। नंगे पाँव और फिर कोई भी गर्म चीज तन पर मौजूद ना होने के बायस दांत बजने लगे थे। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसके चेहरे की रंगत सफेद पड़ गई। दुरान दरवाजा लॉक करके जा चुका था। दुरान को क्या इतना गुस्सा था कि उसे बाहर धक्का देकर दरवाजा ही लॉक कर दिया। बेयकीनी से कितनी देर वो दरवाजे के हत्थे को झिड़कती रही थी। शीशे के पार खाली कमरा मुंह चढ़ा रहा था। फिर अचानक ख्याल आने पर उसने हाथ में पकड़े फ़ोन को खोला। मोबाइल फ़ोन में सिर्फ इनल का नंबर था। दुरान ने कहा था, जो भी ज़रूरत हो, कुछ भी चाहिए हो, तुम इनल से कहोगी। इनल ने उसे अपना निजी नंबर दिया था। वो अपने साथ हमेशा 2 फ़ोन रखता था। एक फ़ोन दुरान के पीए की हैसियत से, जहाँ वो दुरान की तमाम डिटेल्स, मीटिंग्स और रिकॉर्डिंग को मैनेज करता था, और फिर दूसरा नंबर बहुत ख़ास लोगों के पास था, जिसमें उसके घर वाले और दुरान शामिल था। और अब जवेरिया को भी उसने वही नंबर दिया था। बड़ी उम्मीद से उसने इनल का नंबर मिलाया, जिस पर सिर्फ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। वो सर्दी में कांपते बचते दांतों के साथ बार बार इनल का नंबर मिला रही थी, लेकिन वहाँ घंटी बजने की आवाज़ के अलावा और कोई पेशरफ्त नहीं थी। अचानक बादल जोर से गरजा और तूफानी झक्कड़ जैसी हवा ने उसे हिलाकर रख दिया। वो बेख्तियार दीवार को थाम कर सीधी हुई। इसके तो जैसे कुदरत इसके बाद तो जैसे कुदरत ने उस पर एक के बाद एक दूसरी मुसीबत वारिद कर दी। तेज तूफानी बारिश ने पल भर में उसे भिगो दिया था। जिस्म के अंदर मौजूद खून जैसे जमने लगा था। वो बारिश में हिचुड़ती बार बार फ़ोन मिला रही थी। बरामदा सामने से बिल्कुल खुला हुआ था, जिसकी लंबाई ज़्यादा और चौड़ाई बहुत कम थी। यही वजह थी कि बारिश के झक्कड़ बरामदे में आसानी पहुंच रहे थे। तेज बारिश की साथ तूफानी हवा पत्थरों की तरह बारिश के कतरों को उसके वजूद पर फेंक रही थी। वो फ़ोन को फेंककर बेख्तियार दोनों बाजुओं के जरिए चेहरे को ढांपती शीशे के दरवाजे के साथ चिपक कर जुड़कर बैठ गई थी। अचानक ख्याल आया कि दुरान घर में ही होगा। इसका ख्याल आना था कि वो चीख उठी, दुरान, 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 दरवाज़ा खोलें। वो बार बार उसे पुकार रही थी। बिजली की कड़क और बारिश के शोर में ऊंची सी ऊंची चीख ऐसे घुल रही थी कि बमुश्किल उसके कानों को सुनाई दे रही थी। वक्त गुजर रहा था और साथ साथ ही उसके हवास भी जवाब दे रहे थे। ना तो बारिश थम रही थी और ना ही दुरान कमरे में आ रहा था। वो वहां से चला गया था। कोई इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? क्या उसे नहीं पता था कि वो मुझे यहाँ बंद कर चुका है और बारिश हो रही है?
कपकपाते होंठ अब नीले होने लगे थे। कांप कांप कर जिस्म का हर खुलिया दर्द करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अब सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी। वो खांस रही थी। पूरा जिस्म ढीला होने लगा और फिर एकदम वो जमीन पर ढह गई। दरवाजे के बिल्कुल सामने मुकम्मल भीगी वो चित लेटी थी। जब 3 घंटे बाद रोजीन के कमरे में आते ही निगाह शीशे के पार बिजली की चमक की वजह से उसके वजूद पर पड़ी। दौरान अक्सर तेज बारिश में कॉफ़ी ज़रूर पीता था। रोजीन कुछ देर तो इंतज़ार करती रही, लेकिन फिर नींद के गलबे के बायस खुद ही कमरे में आ गई। वो नहीं चाहती थी कि उसके सोने के बाद दुरान की कॉल आए और वो उठा ना सके। वो जब कमरे में पहुंची तो दरवाज़ा मुकम्मल बंद होने की वजह से कुछ देर दस्तक के बाद अंदर झांका और फिर इस हौलनाक मंजर पर निगाह पड़ते वो तेज़ी से आउटडोर की जानिब भागी थी। उसे अब वो रात अपनी ज़िंदगी की भयानक रातों में से भयानक रात लगने लगी थी। ये इंसान का अलमिया है कि हर नई आने वाली तकलीफ उसे अपनी पिछली तकलीफ़ों से बढ़कर लगती है। इस रात पल पल उखड़ती सांसों के साथ वो दुरान की संगदिली पर अपनी मोहब्बत को आहिस्ता आहिस्ता उधेड़ रही थी। अब जब होश की दुनिया में वापस आई तो सबसे पहले उसी को सामने देखकर पूरे वजूद में दर्द की लहर उठी थी। उस पर झुका बड़ी अपनायत से उसका हाल दरियाफ्त कर रहा था। जवेरी ने जवाब देने के बजाय सख्ती से गर्दन को मोड़कर चेहरे का रुख दूसरी जानिब कर लिया था। जवेरिया की बेरुखी और ये नफरत वजह थी। उसने जाने में ही सही, लेकिन उसे बहुत बुरी सजा दी थी। और वो किस बात पर कि वो कुरान पढ़ना चाहती थी। दुरान ने आहिस्तगी से उस पर झुका अपना वजूद सीधा किया। वो भी चेहरे का रुख मुड़े हुए थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ थी। दुरान ने निगाह दरवाजे की जानिब मुड़ी। फ्रेश हशाश बशाश डॉक्टर की सफ़ेद कोट जेब तन किए कमरे में दाखिल हो रहा था। जवेरिया ने भी चेहरा सीधा कर लिया था। फ्रेड अब मुस्कुराता हुआ जवेरिया के सर पर खड़ा था। हेलो मिसेस दुरांग, कैसा महसूस कर रही हैं आप? फ्रेड ने गहरी दोस्ताना मुस्कुराहट सजाए इस्तफसार किया। जवेरिया ने साकिन पुतलियों को घुमाया और चंद सेकंड के वक्फे के बाद सर को इस बात में जुम्बिश दी थी। अच्छा, बहुत अच्छा। आप एक बहुत बहादुर खातून हैं। अगर आपकी जगह कोई और होती तो शायद ज़िंदगी की बाजी हार जाती। फ्रेड मुस्कुराहट सजाए अंग्रेजी ज़ुबान में उसकी तारीफ कर रहा था। जवेरिया ने थके अंदाज में आंखें मूंद लीं। नकाहत के बायस वो अभी भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। दुरांग, इनको अगर 2 दिन और हॉस्पिटल में रहने दें तो ज़्यादा बेहतर है। वो भी मुकम्मल सेहतयाब नहीं हुई। फ्रेड अब संजीदगी से दुरान के साथ मुखातिब था, जो मुस्तरब सा बार बार जवेरिया के चेहरे को देख रहा था। अब फ्रेड के बुलाने पर चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जा हुआ। नहीं, मैं से ये सारी सहूलतें घर में मुहैया कर सकता हूँ। यहाँ सिक्योरिटी का मसला है मुझे, और फिर मैं हर वक्त यहाँ नहीं रह सकूँगा। सीने पर हाथ बांधे संजीदगी से जवाब दिया। फ्रेड ने गहरी सांस लेकर इस बात में सर हिलाया। अच्छा, चलो जैसे तुम्हें बेहतर लगे। ये चंद मालूमात फॉर्म हैं, इनको पुर करो और डिस्चार्ज लेटर लेकर आता हूँ। फ्रेड के हाथ में पकड़ी फाइल दुरान की तरफ बढ़ाई और खुद बाहर निकल गया। दुरान ने एक नज़र जवेरिया पर डाली। वो शायद दोबारा सो चुकी थी। फाइल को थामे वो वापस उसी कुर्सी पर बैठ गया था। कराची रात के 2 बजे डिफेंस में मौजूद ये कोठी तारीकी में डूबी थी और इसी कोठी के इस बड़े हॉल नुमा कमरे में पलंग पर वो सो रही थी। वो हार गई थी। मरियम और जॉन की मोहब्बत और उनकी ज़िंदगी के आगे घुटने टेक दिए थे। ली ताओ नामी शख्स से उसकी शादी इज्तिमाई शादी में हुई थी। ये एक गिरोह था जिसमें चीन के बहुत से लड़कों ने क्रिश्चियन लड़कियों से शादी की थी। शादी के बाद वो सब इन लड़कियों यानी यहाँ डिफेंस में एक बंगले में ले आए थे। इस बंगले में यहाँ के मालिक ने, जो इस गिरोह की सरबराही कर रहा था, तमाम शादीशुदा जोड़ों को 2 हॉल नुमा कमरों में तकसीम कर दिया था। एक कमरे में तमाम लड़के रहते थे और दूसरे में सारी लड़कियाँ। वो लीताओ के साथ अभी तक गूगल ट्रांसलेट पर बात करती थी, जबकि उनके यहाँ चीनी ज़ुबान सिखाने की क्लास भी हो रही थी। आज उसे यहाँ 1 हफ्ता हो चुका था। सब ठीक था और हस्बे मंशा लीताओ उससे बहुत कम बात करता और वो खुद भी यही चाहती थी कि वो उससे बात ना करे। कुछ शादीशुदा जोड़े आपस में बहुत घुल मिल गए थे, लेकिन उसकी और लीताओ की हनूस दूरी कायम थी। वो अभी कुछ देर पहले ही सोई थी जब फ़ोन की घंटी के बायस आँख खुली। फ़ोन पर नंबर देखे बिना उसने कॉल उठाई और फ़ोन को कान से लगा लिया था। हेलो, हेलो जोई, मेरी बात सुनो। हिना की बौखलाई आवाज़ उभरी। नींद से बोतल ज़हन हिना की आवाज़ को पहचानने के बाद अब उसकी घबराहट ज़दा आवाज़ उभरी थी। ज़हन कुछ कुछ हवासों में आ रहा था। मध्यम सी रोशनी चमकी थी। आंखों को चुंधी किए स्क्रीन पर निगाह डाली। फ़ोन को कान से हटाकर सामने किया। दाएं कोने में रात के 2 बजे का वक्त दिखाई दिया। खुद साख्ता सरगोशी।
इस वक्त हिना फोन की दूसरी तरफ मुसलसल उससे कुछ कह रही थी। उसने भौंवी इकट्ठी की, पेशानी पर बल डाले, खुद पर ओढ़ा कंबल एक तरफ किया लिया, बाएं करवट बेखबर सो रही थी। वो इसके ग्रोह की लड़की थी जिससे उसकी अच्छी बातचीत थी। हिना की बात पर उसने गौर किया। नींद से बोझल लहजे में उसे ताबड़तोड़ सवाल पूछ डाले। हिना, इस वक्त खैरियत है? इतना घबराई हुई क्यों हो? जो 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 जो, जो सवाल मत करो। मेरी मेरी मेरे पास वक्त नहीं। खामोशी, खामोशी से सुनो। फोन की दूसरी तरफ से आवाज उभरी। उठ जाएगा और फोन छीन लेगा। मेरी बात। हिना का नाम सिर्फ नहीं बल्कि लहजा भी घबराहट लिए हुए। हिना का ना सिर्फ लहजा घबराहट लिए हुए था बल्कि उसकी फूली सांस वो बखूबी महसूस कर सकती थी। फोन से बामुश्किल उसकी घबराई और घुटी आवाज सुन पा रही थी। अपने हवास बहाल करने की कोशिश करते वो बेड से नीचे उतर रही थी। ठंडे फर्श पर नंगे पांव रखते ही जिस्म में टिटरती लहर उठी थी। चोर सी निगाह चारों जानिब दौड़ाई। हर लड़की बेखबर सो रही थी। हिना को क्या हुआ था? रात के इस वक्त उसने फोन क्यों किया? और आज ही तो बात हुई थी उससे। जहन ना सिर्फ हवासों में था बल्कि आज दोपहर को उससे बात भी तो हुई थी। जोई, तो तुम भाग जाओ यहाँ से। खुद को बचा लो, प्लीज यहाँ मत आना। शाम को जो कुछ मैंने कहा। हिना की गुटी गुटी आवाज फोन से उभर रही थी। वो मेरे सर पर खड़ा था तो सब सब झूठ था। जोई की परेशानी पर जोई की पेशानी पर ना समझी की शक्ल नमूदार हुए थे। वो ये सब क्या कह रही थी? दोपहर को जब बात हुई तो वो बहुत खुश थी। इसी ना समझी में सवाल किया। हिना, कुछ समझ नहीं आ रहा, खुलकर बताओ प्लीज। जैसा मुझे लगता। आहिस्ता बात करो जोई, यहाँ कुछ भी वैसा नहीं जैसा तुम्हें लगता है। वो हर शाम कुछ मर्दों को लेकर आता है और मुझे जिस्म फरोशी पर मजबूर करता है। तो तुम भाग जाओ यहाँ से। मैं यहाँ एक कमरे में कैद रहती हूँ। यहाँ से कम शक्ल लड़कियों के जिस्म के हिस्से काट कर बेच कर उनको लोगों को देता है। हिना ने फूली हुई सांस में बात मुकम्मल की थी। हिना की बात पर उसकी पूरी आंखें खुल गई थी। जहाँ जहन पूरी रफ्तार से दौड़ने लगा था वहाँ हाथ कांप कर रह गए थे। वो ये किस किस्म की बात कर रही थी और क्यों कर रही थी? हिना, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी तो कल रवानगी है। लड़खड़ाती आवाज और लरसते हाथों से मोबाइल को संभालते वजाहत दी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस शराबी कैफियत में बार बार हेलो कहती अब लब को चल रही थी। हेलो 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 हिना, हेलो। फोन को कान से हटाकर स्क्रीन को देखा। दूसरी तरफ से कॉल मुनक़ता हो चुकी थी। वो साकिन सी भवें सुकेड़े हिना की बातों को समझने की कोशिश कर रही थी। बेवर्ली हिल्स में एक हसीन शाम अपने इख्तिताम को थी। जैसिका बेकरी की सुर्ख और सफ़ेद डोरियों वाली वर्दी में मलबूस सफ़ेद नेपकिन और टोपी पहने बड़ी एहतियात से केक को उठा रही थी। शुक्रिया कहने की आदत नहीं क्या आपको? इनल की आवाज़ पर वो रुख मुड़कर काउंटर की तरफ मुड़ी। इनल बशाशत से मुस्कुराता काउंटर पर कोहनी टिकाए हुए था। उस दिन वाइन की रिपोर्ट में बेहोशी की दवा के मिले होने की तस्दीक हो गई थी। उस दिन तो वो इस खबर पर इतनी शर्जर हुई कि नल को लैब में ही छोड़े वहां से आ गई थी। आज दूसरे दिन ही जनाब बेकरी में मौजूद थे। मैं यहाँ काम करती हूँ, इसका कैसे पता चला तुम्हें? इनल की बात का जवाब देने के बजाय वो भवें इकट्ठी किए खुद ही सवाल कर बैठी थी। इनल एक लम्हे के लिए सटपटा गया क्योंकि उस पर खास नजर रखने का दुरान ने उसे कहा था। क्योंकि दुरान चाहता था वो लड़का दोबारा जैसे से कोई बात ना करे। जेसिका के सवाल पर बमुश्किल उसने अपनी घबराहट पर काबू पाया। मैंने कब कहा कि मुझे पता आप यहाँ काम करती हैं? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, आपको देखा और सोचा अपना शुक्रिया तो वसूल कर लूँ। शुक्रिया, जेसिका ने संजीदगी से कहा और केक को डब्बे में रखकर पैक करने लगी। ये शुक्रिया तो नहीं, एहसान लगा मुझे, इनल ने ढीठपन से कहा। वो मसरूफ निगाहें जमाए खड़ी हुई थी। घूरकर इनल की तरफ देखा। मेरे ख्याल में शुक्रिया यही होता है, चढ़कर जवाब दिया। बहुत गलत अंदाज। चलें खैर, शुक्रिया कहना नहीं आता तो एक कप कॉफ़ी पिलाकर आप मेरा एहसान का बदला ही उतार सकती हैं, बड़े बेतकल्लफाना अंदाज में कहा था। बाकी अगली किस्त में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। मिलते हैं इसकी अगली किस्त में। अल्लाह हाफिज़।